all of you. Welcome to your TSN English class. This is your chapter number 1, the third level from your book Vistas. Today we'll be starting this chapter from page number 5. Before this, I would like to tell you about the previous story of the chapter. So what happens here in this chapter, your golden boys, that there is a man whose name is Charles. Charles is in very hurry and he just wanted to get home to Lucia, his wife. So for that, instead of taking a bus, he take Grand Central subway, which is much faster than the bus. And over there in Grand Central, there are only 2 levels, but somehow he finds out the third level, which is the level of the station here over there. So let's read out the chapter from page number 5. Come to page number 5, all of you. So this is your page number 5. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said, and if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old-style bill, half again as big as the money we use nowadays, and different looking. I turned away and go out fast. There is nothing nice about jail even in 1894. So, that man, whose name is Charles, when he reached over there at the station third level, so he asked for tickets. So he said that on counter that I wanted 2 tickets and the clerk figured the fare. So जो clerk है according to उसकी journey कि उसे कौन से स्टेशन से या कहाँ से कहाँ तक journey करनी है, according to that he figure out the fare. He glanced at my fancy hatband, but at the same time he glance here means he looked at his fancy hatband, but he figured the fare. लेकिन उसने उन्हें फेयर बताया है. एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और उसके पास इतना पैसा था कि वो 2 टिकट्स का पैसा पे कर सकें वन वे, लेकिन सिर्फ एक वे का. बट वैन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, लेकिन जब वो मनी को काउंट करता है और ऊपर देखता है, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी. क्लर्क उसे कंटिन्यूसली स्टेयर करता रहता है. ही नॉडेड एट द बिल्स, वो बिल्स की तरफ देख के नॉड करता है. That ain't money, mister, he said. तो वो क्या कहता है, ये मनी नहीं है. And if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. और फिर वो cash drawer पे देखता है. Of course the money was old style bills. क्यों? क्योंकि उसके पास जो पैसा होता है that and the money is in the drawer is something different. Half again as big as the money we use nowadays. सो अभी जो पैसे वो यूज़ करते हैं उसकी लाइक हाफ ही है. एंड डिफरेंट लुकिंग, और वो पैसे भी डिफरेंट दिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है दैट जो टाइम है वो ही बदला सा है. देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. और इस 1894 की जेल्स में भी कुछ अच्छा नहीं था. एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम. वो कह रहा है और यही वो वक्त था जब वो वहाँ से आया. आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक. और वो कहता है कि मैंने नेक्स्ट डे लंच आवर्स में $300 जो हैं वो बैंक से निकाले. नियरली ऑल वी हैड, इतना ही था हमारे पास. एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उससे उसने क्या करा, ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी. दैट रियली वर्डेड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. और जब वो ये सारी बातें अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से डिस्कस करा था, एट दैट टाइम his friend was worried. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. आपको किसी भी डीलर से ओल्ड करेंसी मिल जाएगी, but for that you have to pay some amount or the premium amount. My $300 bought less
देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल, उसके $300 जो हैं वो कम थे एज कम्पेयर टू $200 इन ओल्ड स्टाइल बिल. बट आई डिडंट केयर. एग्स वर 13 cents अ डज़न इन 1894. लेकिन उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि 1894 में जो एग्स हैं वो 13 सेंट एक अमाउंट होता है. 13 सेंट के कितने एग्स मिलते थे? एक डज़न. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड दैट कॉरिडोर. लेकिन उसके बाद जब उसने ये सब करा तो उसके बाद उसे कभी वो कॉरिडोर नहीं मिला. दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. और यही वो टाइम था जब उसे जो है थर्ड सेंट्रल स्टेशन पे वो पहुंच गया था. ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ. उसने काफ़ी बार ट्राई करा कि वो वापस थर्ड लेवल पर जाए. Lucia was pretty worried when I told her all this and did not want me to look for the third level anymore. उसकी वाइफ जो है वो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा चिंता में आई एंड टोल्ड हर ऑल. जब उसने उसे ये सारी चीज़ें बताई कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है स्टेशन पे. आई डिड नॉट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर. और वो नहीं चाहती थी कि वो बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचे. एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड. आई वेंट बैक टू माई स्टेम्स. और जब वो रुका तो वो अपने स्टेम्स पे की बात करने लगा. बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड. लेकिन अब वो दोनों हर वीकेंड पे ऐसा करते हैं. बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर. लेकिन अब उनके पास प्रूफ है कि थर्ड लेवल अभी भी वहाँ है. माई फ्रेंड सैम विनियर disappeared, and I have told you in the beginning of our chapter that there are three characters. The first character is Charles, the second one is Lucia, his wife, and the third one, who is the psychiatrist, is his name is Sam Winium. So because Sam is a city boy and I used to tell, sorry, माई फ्रेंड सैम विनियर डिसअपियर नोबडी न्यू वेयर. और कुछ समय बाद उसका फ्रेंड जो है सैम विनियर वो चला जाता है. किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया है. बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज़ अ सिटी बॉय. लेकिन वो थोड़ा सा डाउट कर रहा है, सस्पेक्ट कर रहा है दैट सैम इज़ अ सिटी बॉय. आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग. वो उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताता था. I went to school there and he always said he liked the sound of the place. और वो हमेशा कहता था कि उसे गेल्सबर्ग नामक जगह के बारे में सुन के he feels very attracted towards that place. And that's where he is all right in 1894. और 1894 में शायद वो वहीं होगा. Because one night fussing with my stamp collection I found, well, do you know what a first day cover is? लेकिन एक दिन जब वो अपने स्टैम्प कलेक्शन में बिजी था, आई फाउंड, वेल डू यू नो, क्या मुझे मिला, क्या आपको पता है फर्स्ट डे कवर के ऊपर, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम. जब नया स्टैम्प इशू हुआ तो स्टैम्प कलेक्टर्स ने उनसे खरीदा. स्टूडेंट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल. और उसे यूज़ किया गया use them to mail envelopes to themselves on very first day of sale. So ऐसा उस पर्टिकुलर स्टैम्प के साथ हुआ. एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट. और उस पर जो पोस्ट मार्क है वो उसकी डेट का एक सबसे बड़ा प्रूफ है. द एनवेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर. और एनवेलप का नाम क्या था? द फर्स्ट डे कवर. दे आर नेवर ओपनड. यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप. वो कभी खोले नहीं गए थे, जैसे किसी ने ब्लैंक पेपर रखा हो एनवेलप में. दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बिन देयर. और उस रात उसे अपना सबसे पुराना फर्स्ट डे कवर मिला, जो लोगों को बहुत मुश्किल से रेयरली मिलता है. बट देयर it was there because someone had mailed it to my mother at his home in Galesburg. और ऐसा उससे क्यों मिला ये? क्योंकि किसी ने उसकी ग्रैंडफादर को ये मेल किया था गेल्सबर्ग में. दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड. और ऐसा उसे कैसे पता? क्योंकि एनवेलप पे वो एड्रेस लिखा हुआ था. एंड इट हैड बिन देयर सिंस जुलाई 1894. द पोस्ट मार्क शोड दैट. और उस पर क्या लिखा हुआ था एनवेलप पे? जुलाई 1894. येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल. उसे अभी ये सब कुछ याद नहीं है. द स्टैम्प वॉज अ 6 cent डल ब्राउन. स्टैम्प जो है वो 6 cent का था, डल ब्राउन कलर का, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गेयरफील्ड. और जो स्टैम्प है उस पर गेयरफुल प्रेसिडेंट की पिक्चर थी. नेचुरली व्हेन एनवेलप केम टू ग्रांडेड
इन द मेल इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन, और जैसे ही एनवलप वहाँ आया मेल पे वो उसकी कलेक्शन में ऐड हो गया, एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक उसने उसे बाहर निकाला और ओपन किया। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, और वो पेपर जो अंदर था जिसके लिए वो सोच रहा था कि ये एनवलप इतने समय से खुला नहीं है, क्या ये ब्लैंक हो सकता है, वो पेपर ब्लैंक नहीं था। इट रीड, और जब उसने वो पेपर रीड किया, in 1941, Street, Galesburg, Illinois, July 1894, Charlie, I got to wishing you that you were right, that I got to believing you were right, and Charlie, it's true, I found the third level. तो वो कहता है कि चार्ली, तुमने मुझे सब कुछ जो बताया था मैंने उस पर बिलीव करा और तुम सही थे, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बिन देयर योर 2 weeks एंड राइट नाउ, मैं यहाँ पर 2 weeks से हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, और स्ट्रीट में वहाँ पे डेलीज में कोई पियानो बजाता है। दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट ऑफ पोचिंग सिंगिंग सीइंग नेली होम, और वहाँ पर कोई ऐसा गाना गाता है। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, कम ऑन बैक चार्ली एंड लूसिया, और मैं तुम्हें एक लेमनेड, एक ड्रिंक होता है लेमनेड के लिए बुलाता हूँ। चार्ली और लूसिया, कम ऑन बैक, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ बिलीव मी, तुम थर्ड लेवल की खोज करते रहो, बिलीव मी, यहाँ आना तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा होगा। द नोट इज साइंड सैम, और नोट में सैम का साइन हुआ था। एट द स्टैम्प द कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसने देखा कि सैम जो है उसके पास स्टैम्प और कॉइन स्टोर उसने रखे थे, और उसके पास कितने $800 थे ओल्ड स्टाइल करेंसी के। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन द नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रास बिजनेस, जो उसने अपने ग्रास बिजनेस और उसके लिए रख रखे थे। ही ऑलवेज सेड दैट वॉट ही रियली विश्ड ही कुड डू, जो वो सच में चाहता है वो वही करेगा। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और अब वो अपने ओल्ड बिजनेस में वापस नहीं जा सकता। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनियस इन 1894, हिज ओल्ड बिजनेस, वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, और अब यहाँ पे चार्ल्स जो है वो कह रहा है वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। सो दिस इज ऑल द थर्ड लेवल, and this is a kind of chapter which is like imaginary. So basically students, here in this chapter, the first page of the chapter, why he is asking you about this type of question, that have you ever heard any curious experience which others find hard to believe. So this is a kind of curious experience with him, and this is a kind of imaginary experience. So now your chapter is over. So kindly pay attention on your question and answers, which I will forward you in your PDF form. Thank you. Stay safe, all of you.